obviously there is an equation. ये दो दोस्त तो बनने वाले हैं और उनको ये पकड़े भी जाएंगे अगली किस में फ्रेयर हॉल पे जो ये पता नहीं गोलगप्पे खा रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं. Yes. So tell me a little bit about the casting process and you know what's happening with Parvarish. Why, of course, I mean it's something you don't say no to. Yes. And you've worked with Meesam Naqvi before, Yes. so वो भी एक reason होगी. But just take me through the process. आई थिंक जब मीसम भाई कॉल करते हैं ना आपको किस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आपको पता है कि वो अच्छा ही होना है, बिकॉज ही हिमसेल्फ ही डज प्रोजेक्ट्स जो दे आर मास्टरपीसेस, यू नो, स्टोरी वाइज. एंड देन अगर वो स्टोरी इतनी अच्छी नहीं भी होती, वैसे उन्होंने कोई ऐसा ड्रामा किया नहीं है जिसकी स्टोरी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी होगी ना तो आई एम श्योर कि मीसम भाई ऐसे हैं कि वो उसको अच्छा बना देंगे. ही इज सो इनक्रेडिबली टैलेंटेड. तो व्हेन मीसम भाई कॉल्ड मी ना, तो उस वक्त थोड़ा डेट्स का इशू हो रहा था, ये वो, एंड आई वाज सो पैनिक्ड. आई वाज लाइक नो मीसम भाई, आई वांट टू डू इट बिकॉज ऑब्वियसली मैं जुड़वा कर रही थी, तो उसमें थोड़ा सा इशू हुआ था, बट समहाउ इन द एंड इट वर्कड आउट. सो आई वाज वेरी हैप्पी. बट इस वाले प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंट है कि मैं ना पूरी कास्ट के साथ नहीं कनेक्ट हुई हूँ, बिकॉज मेरा घर ही डिफरेंट था. तो मायरी में क्या था कि हम सब एक घर में थे और हम सब, मतलब इट वाज सो chaotic. तो मेरा इस स्टोरी में ना घर अलग है, तो मेरी इतनी शूटिंग डेज सबके साथ थे नहीं, व्हिच आई वाज रियली सैड अबाउट. बट जो थे इट वाज great, and most of the people I knew them before Parvarish. So I was also very excited about the cast because obviously it's summer. I'm very good friends with Summer, and then I know the kids as well. I watched Abul's videos before. Abul's so funny. Yeah, Abul is so funny. I watched his videos. So I'm a big fan of his. Like I'm a very big fan of Abul. So when you first walked in, I was starstruck. I was like, oh my god, I watch you. And he was like, you watch me? I was like, yeah, you're lovely. So I had my, fan moment right there. So that was lovely. But so I was so excited to work with these people, and I was like, I want to go on set. Like I was waiting to go on that set because it's obviously such an intense story, and then I'm a very big part of it, which is lovely, and I get to work with these great people, and then obviously working under Meesam Bhai is always a pleasure. It's always a pleasure. मैं उनको ना एक्चुअली वर्ड्स में बता ही नहीं सकती वो कैसे अपने क्राफ्ट को लेके चलता है. आई थिंक ही इज द वन हु एक्चुअली मेड मी अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी of how acting works, or the depth you can go to, how you need to analyze a script. He is the reason why I have the sense I have. Like he has been a really, वो मेरे लिए सिर्फ एक director नहीं है. Meesam Bhai is a lot more to me than a director. He's like an actual big brother I have, that I rely on for advice, that I rely on for being honest with me. जब उनके अंडर आप काम भी कर रहे होते हो ना as director and actor, तो आपको पता है कि आपका काम अच्छा निकलेगा, बिकॉज वो आपको पॉलिश कर देते हैं. ही इज सो गुड एट व्हाट ही डज. वो आपको ना समझते हैं और आपको उस हिसाब से लेके चलते हैं. लाइक ही इज सो जेंटल विद यू, ही इज सो केयरिंग टू यू, and you'll want to do good because then he just feels like a teacher, you know. He's a teacher that you want to please. वो नहीं होता अच्छे teachers जिनका आपका दिल करता है कि आप उनके लिए अच्छा करो ताकि आपको एक गुड मिल जाए उनसे. He's one of those, you know, and it's an honor to be working under him. Like I don't know what I did to deserve it, but it's an honor to be working under him. No, He's lovely. That's really nice. What we've seen so far in Maya's character is she's 18 years old. है ना? Yes. Pre-medical prep, Yes. wants to be a doctor. That's her dream. She's 18. माँ बाप ने मंगनी कर दी है, और जहाँ तक मुझे समझ आ रही है माँ ने कहा है बेटा 5 साल हैं शादी तक, उसमें कुछ भी हो सकता है, तुम अभी मान जाओ ताकि अब्बा तुम्हारे से खुश हो और पढ़ने दें, तुम पढ़ लो और फिर देखी जाएगी. मगर देखी जाएगी कभी नहीं होती, बिकॉज फौरन ससुराल का प्रेशर आ जाता है और मंगेतर का प्रेशर आ जाता है. एंड ऑफ कोर्स शी इज नॉट टेलिंग हर पेरेंट्स एवरीथिंग बिकॉज ही इज अ बिट ऑफ अ रेड फ्लैग, बट देन ही सेंड्स द चॉकलेट्स एंड द फ्लावर्स. तो माँ का ख्याल है कि तो बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है. मदर इन लॉ के अपने इश्यूज हैं कि पहली 2 बहुएं भी डॉक्टर बहू चाहिए उनको, लेकिन प्रैक्टिस ना करें. सो अ लॉट ऑफ पीपल वुड आस्क कि क्या हर्ज है मंगनी करने में या शादी करने में, शी इज ऑफ एज, अगर वो उसको पढ़ने दे रहे हैं तो क्या हर्ज है. So as a young girl, how would you kind of explain that? It's not something कि जो सिर्फ साइड पे आप रख दो और आप भूल जाओ क्या मेरी engagement हुई है. It's a very big responsibility. Being engaged is not something that you can just ignore, and I think everybody like kind of understands that. हाँ, she is of age, he is caring, लेकिन he is also very suffocating. Medical करना आसान बात नहीं है. Hats off to the doctors. You know, they give their sweat, blood and tears to do medical. We should respect them.
as much as we can. तो वो भी वही मेहनत कर रही है, उसको पता है वो साइकिल, उसको पता है कि उसे अभी मेडिकल, वो प्री मेडिकल, मेडिकल, फिर वो करना, ये करना, वो करना, एंड देन देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर एक और एंगेजमेंट इज उसके ऊपर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आना. And she's like, this is, I don't want to right now. Like, of course she is of age, but her brain is still developing. Yeah. And I think as a doctor, she knows that. Yeah. She knows that my brain is not developed yet. I don't want to get married. That is not in my to-do list right now, as of right now. मैं एक दफ़ा डॉक्टर बन जाऊँ, प्रैक्टिसिंग थोड़े साल प्रैक्टिस करूँ, फिर भले शादी कर लूँ. अभी से ही एक एंगेजमेंट हो जाना मेरे लिए एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम टॉकिंग एज अ माया राइट नाउ, मेरे लिए एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आई वांट टू फोकस ऑन माई स्टडीज, दैट्स वेयर आई वांट माई फोकस टू बी. चलो अब कर ली मैंने एंगेजमेंट, एटलीस्ट बाबा पढ़ने देंगे, सही है, मैंने एंगेजमेंट कर ली. अब वो कॉल पे कॉल कर रहा है, कॉल्स कर रहा है. मैं जब उसकी कॉल नहीं उठा रही तो वो उसकी अम्मी बोल रही हैं कि कॉल क्यों नहीं उठा रही तुम उसकी. तो वो भी एक है कि अब 2 घंटे में इससे बैठ के बात भी करूं, फिर मुझे पढ़ना भी है, फिर मुझे कोचिंग सेंटर भी जाना है, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, मतलब देयर इज सो मच स्ट्रेस. एंड देन ही इज सो suffocating, you know. He's so like, pick up my call and I'm calling you in every hour of the day, every minute of the day, I want to talk to you. It's like I can't say no to him because अगर उसने मेरे अब्बा को कुछ कह दिया या उसकी अम्मा और कंप्लेन करने लग गई तो मेरे घर में तमाशा हो जाएगा. तो I'm like, you know what, I'm helpless. Well. She has to be at the family wedding, ढोलकी पे भी आए, exactly, ये भी करना है, वो भी करना है, मुझे पढ़ना है, कल मेरा टेस्ट है. I'm helpless. I'm like trapped in a house where I don't know where the outside where I can escape. Like I don't know how to escape. Like I'm just here. No matter which way I go, I'm still getting yelled at, and I'm still like helpless. Like I'm back at square one. No matter where I go. अगर मैं उस बात नहीं भी करूँगी तो अब्बा बोलेंगे, क्योंकि फिर वो बोलेगा अपनी अम्मी को, अम्मी उसकी अम्मी बोलेंगी मेरी अम्मी को, फिर वो एक पूरा होगा. तो इट्स लाइक एग्जॉस्टिंग. दैट्स व्हाई शी डजंट वांट द स्ट्रेस राइट नाउ. एंड एक एंगेजमेंट या आपकी शादी होना आप ऐसी चीज़ थोड़ी ना कि आप बस हाँ हो गई अब चलो अपनी ज़िंदगी से कंटिन्यू करेंगे, चल थोड़े दिन की चीज़ है फिर हम लोग अपने ज़िंदगी में वो कर लेंगे. नहीं, इट्स लाइक ही इज फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज सो सफोकेटिंग, एंड देन या एक रिश्ते को निभाना हर किसी एक इंसान की ह्यूमन नेचर है कि चलो अब रिश्ता बन गया तो अब हम उसको सही तरीके से निभाएं. ऐसे तो नहीं कि आप करके सही करते हैं. एग्जैक्टली. अब उसको फोकस उसका डिवाइड हो रहा है. एंड शी न्यू शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल हु कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट कि उसे पता चल रहा है, उसको पता है कि अगर उसकी एंगेजमेंट हो गई तो भाई मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाऊंगी सही से. एंड व्हेन शी इज मेट वली एंड शी इज रियलाइज कि ये तो वली है जिसके गाने भी मैं सुन रही हूँ, एंड शी फाइंड्स अ लिटिल बिट ऑफ एस्केप इन दैट सॉन्ग एंड इन म्यूजिक. और जब वो गाता है बैठ के तो दैट लिटिल बिट ऑफ अ फैसिनेशन और I wouldn't say like fondness or love, but there is a kind of an interest. Yeah, it's like, okay, so in my mind when I was doing that scene, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, I am very passionate about medical and medicine and studying that. He's passionate about his music. Yeah. I'm looking at him as if I'm appreciating his passion, because eventually it looked a bit like an infatuation. Yeah, but in my mind I was thinking that like, oh my god, this person, we match the same level of being passionate and ambitious. It's just different fields. Yeah. You know how much I love medicine and medical, he loves his music, and look at how good he is. Yeah. You know, I think it was not so like romantically. I think मैं जिस मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो perceive obviously लोगों की मर्जी है वो कैसे करें, और जैसा अब I did my best to play it. Performed very well. It was a very very sensitive scene. हाँ, मगर मुझे लगा ये कि हाँ admiration भी है कि ये passion है इसका, लेकिन थोड़ी सी infatuation भी है कि अच्छा okay there's somebody like me. Yeah. And somebody who'll understand me. Yeah, exactly. Like because कोई उसकी अगर जिंदगी में देखा जाए तो कोई समझ नहीं रहा कि उससे डॉक्टर बनना है, लेकिन उससे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना है, उसे सिर्फ डॉक्टर अपने नाम के साथ नहीं जोड़ना, स्टैंपिंग नहीं करनी है, या उसे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना है. शी वांट्स टू हेल्प पीपल, केयर फॉर पीपल. तो nobody understands that, and because she sees somebody who's so passionate about their field, she's like, hats off, respect. Respect to you. Did you ever feel when you were being cast for Parvarish that okay अब ये फिर shipping शुरू हो जाएगी, and is that a good thing or a bad thing? Because अभी तक whenever you've been in like a romantic track, it's been with Samar, है ना? Yes. या और तो नहीं कोई other than वो ज़िद्दी, but that's we'll not talk about. But जुड़वा में भी है. जुड़वा में भी है. Yes. You have, yeah. But Samar के साथ did you ever feel कि अच्छी ये ज़्यादा stereotype ना हो जाए या लोग फिर से shipping शुरू कर देंगे? Is that a problem? वो तो हमें पता था कि shipping शुरू कर देंगे. हाँ.
बिकॉज ऑब्वियसली वो हम लोग का वो दोस्ती और सब, लेकिन आई डोंट रियली माइंड. मैंने ये नहीं सोचा कि लाइक ओ इज दैट अ गुड थिंग और बैड. आई थिंक आई परसीव इट एज अ गुड थिंग बिकॉज ऑब्वियसली दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, तो लाइक दोस्ती वो नजर आती है लोगों को. हाँ, जिस तरह आप लोग मॉर्निंग शो पे बैठे हुए थे, बहुत लोगों ने कहा ओहो इनकी क्या लड़ाई हो गई है जो ये इधर मुंह करके बैठी हुई है, वो उधर मुंह करके बात नहीं कर रहे हैं. I was wearing a dress. तो ऑब्वियसली जिसने शो पे बुलाया उनसे तो मैं ऐसे करके नहीं बैठ सकती ना, तो इसलिए मैं बैठी हुई थी बिकॉज हम लोग एक साथ ही बैठे हुए थे, मतलब हम लोग की कोई लड़ाई कुछ नहीं हुआ था हम लोगों का. मैं नहीं कह रही, I was just reading comments and like ये लड़ रहे हैं. जब कैमरा हम लोग बात भी कर रहे थे, coincidentally जब कैमरा उस तरफ होता था ना, वो दोनों बात कर रहे थे, तब हम जब रेहाम और अबुल बात कर रहे होते थे, तब मैं और समर बात करते थे. तो ना मैं इसलिए होके बैठी हुई थी क्योंकि आई वाज वेयरिंग अ ड्रेस. तो it was a pretty long skirt, but still when you're wearing a dress you basically you turn a little bit and you sit like that. It's a little, like it's the etiquettes of wearing a dress. I was just following the etiquettes. I was not mad at him, he was not mad at me. We're friends. अभी भी दोस्त हैं. हाँ, yeah, we're friends, we're talking. I can call him and be like कैसे हो अभी right now. We're still friends. Exactly. कोई लड़ाई नहीं थी. सही है. When wrapping up more or less, what are the pressures of being in the limelight? I mean, अभी ड्रेस की बात की है. Is there a pressure to look a certain way now? No, I don't take that pressure. You don't take the pressure. कि अब रंगत का ख्याल रखो, सांवला ना हो जाए, आपकी नजर तो नहीं आ रही. वो लोग बोलते हैं, of course लोग बोलते हैं, लोग हर चीज़ पे बोलते हैं. मैंने तो हर चीज़ के बारे में देखा है अपने comments, which is okay, it's fine. लोग मेरी basically I am going through puberty in front of the audience, right? So I'm growing up, तो acne भी होती है, ये भी होता है, वो भी होता है, पिंपल भी हो जाता है, सब होता है. और मैं कवर भी नहीं करती, वो भी नहीं करती. मैं कहती हूँ उसको छोड़ दो, हाँ मेकअप नहीं लगाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो. तो इट्स लाइक कि मैं आई डोंट रियली केयर, बट मोर और लेस आई थिंक सबकॉन्शियसली आई डू, बिकॉज लोग कह देते हैं आपको कभी कभी कि मोटी हो रही हो, पतली हो रही हो. आई ट्राई टू बी हेल्दी, तो आई ट्राई कि मैं वॉक करूँ अच्छी, नॉट particularly to stay skinny, but to be healthy. You know, to let my organs have a break as well, and you know, sleep as much as I can. Walk पे जाऊँ, ये करूँ, अच्छा खाना खाऊँ, healthy. और ये सारी चीज़ें. I don't think I care about the beauty standards, but I think जब आप ऐसी इंडस्ट्री में आ जाते हो तो आप subconsciously आप केयर करते हो, because लोग आपको कहते हैं. जैसे my goal was never